उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आपने आंसर करते जाना है। पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर फॉर बर्न पेशेंट इज DIC, शॉक, हाइपोक्सिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया। DIC. Small saphenous vein is accompanied by which nerve? Sural nerve, tibial nerve, femoral nerve, sciatic nerve, obturator nerve. Edema of renal origin is most likely due to hypertension, albuminuria, and sodium retention, decreased water excretion, calcium retention by kidney या kidney stones. ठीक है, albuminuria और sodium retention. Infection, mononucleosis, infect with cells, T cell, B cell, natural killer cells, macrophage, monocytes. आवाज़ अब क्लियर है आपको या अभी भी ख़राब आ रही है? Degranulation of basophil and ठीक है, degranulation of basophil and mast cell causes what kind of shock? Septic shock, hypovolemic, cardiogenic, anaphylactic, toxic shock. Anaphylactic. Primary oocytes surrounded by which non-cellular layer? Corona radiata, zona pellucida, theca externa, theca interna. Very good. नहीं, इसका है, इसका करेक्ट आंसर है कोरोना रेडिएटा, सॉरी जोना पेलुसिडा। जो नॉन सेलुलर लेयर होती है वो जोना पेलुसिडा होती है, और जो सेलुलर लेयर होती है वो कौन सी होती है? कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ये आपने दोनों MCQs याद रखने हैं। जो नॉन सेलुलर लेयर होगी वो जोना पेलुसिडा होगी, ठीक है, और जो सेलुलर लेयर होगी C फॉर सेलुलर, C फॉर कोरोना रेडिएटा। ठीक है, इस तरह आपने याद रख लेना है। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी इज NSAIDs, कोबालामिन, TCA, विटामिन D, नायासिन, कोबालामिन। ठीक है, विच वन इज प्री मेलिग्नेंट? कंपाउंड निवस, इंट्राडर्मल निवस, जंक्शनल निवस। अच्छा, अभी हम जो है ना सेक्शन 1 to 17 SK हमने स्टार्ट की हुई है। सेक्शन 3 हमारा कंप्लीट हो गया था, उसका भी हम वाइवा स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद बस 5 मिनट के बाद हम सेक्शन 4 जो है SK 16 वाला पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, रिच सोर्स ऑफ विटामिन K इज ट्यूबर्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पल्सेस। विटामिन K किस में होता है? ग्रीन वेजिटेबल्स में। ड्रग्स हैविंग शॉर्ट प्लाज्मा हाफ लाइफ इज रीच स्टेडी स्टेट क्विकली, आर वीक बेसिस, आर एसिड्स क्लियरेंस। ठीक है, pulmonary vasoconstriction occurs due to low oxygen, carbon dioxide, edema, decrease pulmonary pressure, increase oxygen. pulmonary अच्छा रुके, मैं आवाज़ का कुछ करती हूँ, वो मौसम की वजह से ना थोड़ा से वाईफाई के सिग्नल भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं। Which one of the following is not affected in pregnancy? Growth hormone, thyroid hormone, parathyroid hormone, cortisol. Growth hormone. In summers, fasting men having concentrated urine due to aldosterone, increase ADH, decrease water intake, increase sweating, cortisol. Increase ADH. QRS complex prior to ventricle systole, ventricle diastole, atrial systole, atrial diastole, atrial, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज कौन सी है? इसमें से एग्जांपल मैं बताती हूँ। मार्फन सिंड्रोम, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, CA कोलॉन हीमोफीलिया। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी फ्रॉम ATP इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बाय डाउनहिल मूवमेंट। ठीक है, विजुअल पेन इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर? एलिवेशन, स्ट्रेच, कंप्रेशन, कॉन्स्ट्रिक्शन। स्ट्रेच की वजह से। Ulnar nerve damage at medial epicondyle, which muscle will be affected? Flexor pollicis longus, medial two umbilicals, opponens pollicis, all of the above. Medial two umbilicals. Blood clot consists of fibrin, fibrinogen, plasminogen, plasmin. Fibrin. In fetal circulation, highest oxygen saturation is present in umbilical artery, superior vena cava, inferior vena cava, umbilical vein, aorta.
ठीक है। टोटल हेमाटोक्रिट इन इन्फेंट इज 36, 54, 60, 45. GLP-1 agonist and anti-diabetic drug is metformin, exenatide, pioglitazone. Exenatide. Which viral agent causes bronchiectasis in child? Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, adenovirus, respiratory syncytial virus, HSV. ठीक है। ASO titer used in rheumatic fever, type 1 diabetes mellitus, Reiter syndrome, multiple myeloma, myocarditis. Neurotransmitter of mood is dopamine, serotonin, glycine, GABA, choline. मूड के लिए सेरोटोनिन होता है और इमोशंस के लिए कौन सा होता है? डोपामिन. In cell cycle, G2 phase is present between S and M, M and G1, G1 and S, S and G2, G1 and G2, S and M. Sperm lifespan is 50 hours, 30 hours, 64 hours, 54 hours. 64 या 72. Melatonin regulates which one of the following? Pigmentation, taste, vision, visual acuity. Pigmentation. Which one of the following increases extracellular presence having profound effect on the heart? Potassium, sodium, bicarbonate, calcium, magnesium. Very good, potassium. ALL का मार्कर कौन सा होता है? CD8, 18, 19, 30, 22. 19. Pituitary tumor invade which one of the bone? Frontal bone, sphenoid bone, cribriform, ethmoid, temporal. Sphenoid. The serology test for Aspergillus is galactosidase, galactoman, galactoprotein, phospholipid A. Galactoman. Which antibiotic work by inhibiting the bacterial cell wall? Aminoglycoside, penicillin, chloramphenicol. पेंसिल, तो इसमें पेंसिलिन आएगा, ठीक है। रीजनरेटिव सेल्स ऑफ द ब्रेन आर एस्ट्रोसाइट, न्यूरल क्रस्ट सेल्स, श्वान सेल्स, न्यूरॉन्स। एस्ट्रोसाइट्स। ए प्लास्टिक अनीमिया का करैक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? पैनसाइटोपिनिया, बाईसाइटोपिनिया, फैटी मैरो, रेड सेल डिस्प्लेसिया, एनाप्लेसिया। What is the side effect of morphine? Hypotension, rash, diarrhea, constipation. Constipation, ठीक है। चलिए, हमारा अब जो SK का सेक्शन 3 था वो कंप्लीट हो गया। आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 4, SK 16, पेज नंबर 223, ठीक है। Patient has gradual vision loss and laser photocoagulation was done. तो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से विजन लॉस होती है और फोटोकोआगुलेशन किस में करवाते हैं? रेटिना की करवाते हैं, ठीक है। मैन हैड ट्रॉमा एंड ग्रेजुअल विजन लॉस, एक्यूट विजन लॉस प्रिजर्व ड्यू टू कोलेट्रल सप्लाई फ्रॉम। तो जो सारी आई बॉल होती है, सारी जो आइज़ के अंदर स्ट्रक्चर होता है, उसकी आर्टीरियल सप्लाई कौन सी आर्टरी से आ रही होती है? ब्रांच पोस्टीरियर PCA से, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से, ठीक है। ये ऑक्सीपिटल लोब को सप्लाई कर रहा होता है ना। पेक्टोरलिस मेजर फ्लैप विल गेट ब्लड सप्लाई फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये कहाँ से ले रही होती है? आर्टरी जो है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी जो है इसे ब्रांच प्रोवाइड करती है इसकी ब्लड सप्लाई के लिए, ठीक है। प्योर फ्रेनिक इनर्वेशन टू विच पार्ट ऑफ द प्लूरा? तो प्योर फ्रेनिक किसकी होती है? मीडियास्टल प्लूरा होता है, लेकिन जो डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा होता है ना उसकी डोम को सप्लाई करती है फ्रेनिक नर्व, और जो उसका पेरिफेरल पार्ट होता है उसे कौन सी नर्व सप्लाई करती है? लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व्स, ठीक है। और कोस्टल प्लूरा की नर्व सप्लाई कौन सी होती है? जो ऑप्शन चार्ली में दिया हुआ है, इंटरकोस्टल नर्व, ठीक है। 5 MCQs, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5-HT एंटेगोनिस्ट यूज्ड इन द पेशेंट विद डायरिया? तो हमने रिपीट किया था कि डायरिया का 5-HT एंटेगोनिस्ट कौन सा होता है? अल्डोस्टेरोन होता है, ठीक है। ये फंक्शनल बाउल डिजीज में भी हम देते हैं। डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फेरेंजियल आर्च कौन सा मसल होता है? स्टाइलोफेरेंजियस। ट्रू अबाउट पायामेटर क्या होता है?
ये एक्सटेंड कर रहा होता है सल्कस एंड फिशर्स ऑफ द ब्रेन टिश्यूज के अंदर, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ तक होता है, एंड कहाँ पे होता है, टिप ऑफ द कॉक्सिस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, 8 MCQs है। लेडी केम विद डिक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। अगर एक पेशेंट ब्रेडिकार्डिया के अंदर जा रहा है तो आप उसे कौन सी ड्रग देंगे उसका हार्ट रेट इंक्रीज करवाने के लिए? एट्रोपिन देते हैं, ठीक है। 9 MCQ, 16-year-old female patient with hypertension increases weight. Which one of the following feature would be more suggestive of Cushing syndrome rather than simple obesity? तो कौन सी चीज़ इसे डिफ्रेंशिएट कर रही होती है? एब्डोमिनल स्ट्राया, ठीक है। जो कुशिंग डिजीज़ के पेशेंट में एब्डोमिनल स्ट्राया बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉक्सिमल मायोपैथी होगी तो आपने उसको प्रेफरली चूज़ करना है। 10 MCQs, ह्यूमन इज़ द इंटरमीडिएट होस्ट फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए होता है? जो हेपेटाइटिस सी डिजीज़ है ना, ये आपका रफ़ी के अंदर भी कौन सा टेप है, आई थिंक इम्यूनोलॉजी के अंदर पहला फर्स्ट पेज पे बना हुआ है टेबल, ठीक है। उसमें दिया हुआ है कि जो अमीबा वगैरह होते हैं, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, ये सारी हेपेटाइटिस डिजीज़, जो हेपेटाइटिस डिजीज़ होती है ना, बेसिकली आई थिंक डॉग से ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो जो ह्यूमन होता है ना, जनरल पैथो में है, ठीक है। और जो ह्यूमन होता है ना, वो इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है, ठीक है। 11 MCQs है। फादर ब्रॉट हिज डॉटर डायग्नोज विद टाइफाइड, तो प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं? सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg 2 वीक्स के लिए वंस डेली, यानी कि ओडी में दे देंगे, ठीक है। 12 MCQs, ए पेशेंट केम इन अनकॉन्शियस पल्सलेस स्टेट, आईवी लाइन आपको मिल नहीं रही, ठीक है। आपने ईटीटी पास की है, पेशेंट को सीपीआर स्टार्ट कर दिया है। सारी ड्रग आप ईटीटी से दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आईवी लाइन तो आपको मिली नहीं है। तो कौन सी ड्रग है जो ईटीटी के थ्रू इनइफेक्टिव होती है, ये आप नहीं दे सकते? नोरेपिनेफ्रिन, ठीक है। फैट डाइजेशन किसके थ्रू होती है? एमल्सिफिकेशन होती है ऑफ फैट्स बाय बाइल सॉल्ट्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टीरॉइड्स हार्मोन क्या होते हैं, किसके ऊपर एक्ट करते हैं? जीन्स के ऊपर एक्ट करते हैं। और साइक्लिक एएमपी किसके ऊपर एक्ट करते हैं? उसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? हमने पहले भी किया हुआ, रिसेप्टर्स, ठीक है, चार्ली, एक्ट ऑन रिसेप्टर्स। 15 इंटरमीडिएट पेन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, उसे कहाँ पे उसका डर्माटोम कौन सा होता है? अम्बलाइकस वाला, ठीक है। एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी ड्रग देंगे? आईवी फ्रूसामाइड देंगे, ठीक है, लूप डायोटिक्स देंगे। आईवी यूरोग्राफी ऑफ 8-year-old बॉय शो नॉर्मल राइट किडनी बट शो एब्सेंट ऑफ किडनी ऑन द लेफ्ट साइड। स्मॉल शेडो अपीयर्स इन द पेल्विक रीजन, तो इसका मतलब है कि पेशेंट की जो किडनी है वो लंबर रीजन में नहीं है बल्कि वो पेल्विक रीजन के अंदर है, लेफ्ट किडनी। किडनी स्टोन्स ड्यू टू ऑक्सैलिक एसिड विच अमाइनो एसिड इज डिफेक्टिव, ठीक है। तो इसमें कौन सा अमाइनो एसिड डिफेक्टिव होता है? लाइसिन। ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फैटल डिजीज हु शुड बी इन्फॉर्म्ड, अगर जैसे एड्स वगैरह इस तरह की ज़्यादा बड़ी डिजीज़ हैं तो आप क्या करेंगे? पेशेंट को क्लियरली उसे इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। और मतलब मेन उसे सारी आपको प्रोवाइड करेंगे क्रिस्प एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट। 20 MCQs, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर लाई पोस्टीरियर टू द आर्च ऑफ एओर्टा, कौन सी नर्व पास करी होती है? लेफ्ट साइड की रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल विच प्रेजेंट एंटीजन टू द टी सेल एंड स्टार्ट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, तो वो कौन से सेल्स होते हैं? मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। इन इंटरनल कैप्सूल इंजरी व्हाट विल बी इफेक्टेड, अगर इंटरनल कैप्सूल, ये हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है, तो ऑपोजिट साइड का जो कॉन्ट्रालैटरल साइड का डैमेज आ रहा होता है, सारे जो मसल्स होते हैं स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाती है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनाफाइलैक्टिक एंड हाइपोवॉल्मिक शॉक, इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है? कि एनाफाइलैक्टिक शॉक के अंदर कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, हाइपोवॉल्मिया में तो डिक्रीज हो जाती है ना। मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर सिक्रेटेड किस सेल से सिक्रेट होता है? सर्टोली सेल से, ठीक है। 25 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, के साथ कौन सा वस्कुलाइटिस एसोसिएटेड होता है? थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। 26 आफ्टर मायोकार्डियल इंजरी व्हाट बायोकेमिकल चेंजेस विल बी सीन इन द हाइपोक्सिया, तो हाइपोक्सी की कंडीशन है तो एरोबिक तो हो नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि हाइपोक्सिया डिवेलप है, तो अब वो एनर्जी कहाँ से लेंगे? एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। बच्चों के अंदर स्पाइनल कॉर्ड एंड कहाँ पे होता है? अपर बॉर्डर ऑफ L3 या लोअर बॉर्डर ऑफ L2, ठीक है। 28 विच हार्मोन कॉजेज मोस्ट पोटेंट प्रोटीन सिंथेसिस इन द स्केलेटल मसल्स, वो कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व एक्टिविटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स, कौन सी प्रोटीन? रिलैक्सेशन वाली प्रोटीन कौन सी होती है? ट्रोपोमायोसिन होती है, ठीक है।
बाकी एक्टिन और मायोसिन तो कंट्रैक्शन वाली होती है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये एग्रीगेट व्हेन बाउंड टू द कोलेजन फाइबर, ठीक है। 31 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल मैकेनिज्म दैट स्टॉप द ब्लीडिंग आफ्टर ए कट, ठीक है। तो कट लगने के बाद सबसे पहले क्या होती है, ब्लड वेसल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट करती है, ठीक है। उसके बाद में प्लेटलेट एग्रीगेशन वगैरह होता है। सबसे पहले वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी और ये एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू होते हैं या इंट्रिंसिक पाथवे होता है। पाथवे कौन सा आएगा इसमें, इंट्रिंसिक आएगा, ठीक है। ESR डिक्रीज, हाँ जी इंट्रिंसिक आएगा। ESR डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अगर एल्ब्यूमिन इंक्रीज होती है तो ESR डिक्रीज हो जाता है इसमें, ठीक है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, सॉरी, ठीक है। एक तो TSH रिलीज होगा, ठीक है। और कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन FSH, LH और ACTH, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आप लोग बताएंगे हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन से ऑप्शन आएंगे हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से ना डायरेक्टली, अच्छा जो ADH और ऑक्सीटोसिन है ना ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होंगे, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली सिक्रीट होते हैं ना वो कौन से होते हैं, डोपामिन एंड GnRH, अल्फा और बीटा ऑप्शन, ये दोनों हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली सिक्रीट होते हैं। ह्यूमन प्लेसेंटा के अंदर क्या आता है, सेपरेट हो जाती है व्हेन देयर इज ए रप्चर ऑफ मैनी यूट्राइन आर्टरीज, ठीक है, या यूट्राइन मसल्स भी आ जाएगा। 35 ए fetus was aborted, it was sent to forensic lab, how can the viability be checked that for how long the fetus was viable, ठीक है। तो आप कैसे चेक करेंगे, क्राउन लम्प लेंथ चेक कर लेंगे, ठीक है। वो उसकी ग्रेटर होती है 250 मिलीमीटर से। बॉडी मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू ट्रोमा, स्केलेटल मसल रिस्पॉन्ड बाय, ठीक है। ट्रोमा के अंदर स्केलेटल मसल्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रोटियोलाइसिस, इनके प्रोटीन की ब्रेकडाउन इंक्रीज हो जाती है। 37 52 ईयर्स ओल्ड मैन प्रेजेंटेड विद इन OPD विद अनयूजुअल फेशियल एक्सप्रेशन, हाफ साइड ऑफ द फेस वाज रेड, अच्छा आपने इसको हाईलाइट करना है, ठीक है। फेस की आधी साइड जो है वो रेड है, एब्सेंस स्वेटिंग है, तो ये कौन सी सिंड्रोम होती है, हॉर्नर सिंड्रोम, ठीक है। और इसमें कौन सी नर्व डैमेज आती है, सिंपैथेटिक सर्वाइकल चेन का डैमेज आता है, ठीक है। 38 4 years old child with fever of 2 weeks, epistaxis and diffuse lymphadenopathy, HB5 पे TLC 100 है, प्लेटलेट 10 है। तो मोस्ट लाइकली कौन सा बच्चों में कौन सा लिम्फोमा होता है, ठीक है, ALL होता है। eosinophils and apoptotic cell is due to which one of the following, तो इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक RNA लॉस हो जाता है, ठीक है। फास्टेस्ट रिस्पॉन्स इन टू इंक्रीज BP किसके थ्रू आता है, बैरो रिसेप्टर्स, ठीक है। और अगर BP आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर 60 से बिलो चला जाता है तब कौन सा रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा, CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स। 41 MCQs कॉज ऑफ पेटिकल हेमरेज अगर 2 मिलीमीटर से कम है, ठीक है, तो वो कौन सी डिसऑर्डर में होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसमें बेसिकली क्या होता है कि प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जो एको ऑप्शन है हीमोफीलिया, उसमें क्या होता है, डीप टिश्यू के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर विटामिन K की डेफिशिएंसी होगी तब भी ब्लीडिंग होगी पेशेंट को। बीटा ऑप्शन में वस्कुलर फ्रेजिलिटी में होगी तो परपुरा बन जाएंगे, पर्पल कलर के जो रैश से बन जाते हैं बॉडी के ऊपर। लीवर डिजीज़ के अंदर थोड़ी सी ब्रूजिंग वाली हिस्ट्री आएगी, ठीक है। 42 MCQs है, मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फीलिंग कब होती है, फर्स्ट थर्ड ऑफ डायस्टोल और सेकंड 2/3 ऑफ द डायस्टोल में स्लो फीलिंग होती है। और ये ECG के ऊपर सेगमेंट में कैसे आता है, ये हमने याद किया हुआ है, किसके थ्रू कैसे शो होता है, वेंट्रिकल जब फिल होते हैं TP सेगमेंट के थ्रू, ठीक है। टिप टिप करके वेंट्रिकुलर फिल होता है ना, तो आपने TP सेगमेंट से याद रखना है। 43 सडन राइज इन पल्स प्रेशर ड्यू टू, तो हमने क्या बात की थी, अगर पल्स प्रेशर रेज्ड होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, पल्स प्रेशर स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो पल्स प्रेशर भी डिक्रीज होगा। क्लास ऑफ ट्यूमर विच एक्ट एगोनिस्ट होस्ट सेल, ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, CD4 सेल्स होते हैं जो ट्यूमर सेल्स के साथ किल कर रहे होते हैं, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद पेरिकार्डाइटिस, प्लूरल इफ्यूजन एंड जॉइंट पेन, ये मैंने आपको कल भी बताया था,
कि जो SLE होती है ना वो मल्टी ऑर्गन्स को अंदर कॉम्प्लिकेशन कॉज कर रही होती है, ठीक है। तो आप इसमें कौन सी SLE में कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे? एना करवाएंगे, ठीक है। और जो अल्फा ऑप्शन है वो हम किस में करवाते हैं? AMA PBC के अंदर करवाएंगे, ठीक है। और एंटीबॉडीज़ किस डिजीज़ में पॉजिटिव आती हैं? पोलीमायोसाइटिस के अंदर, ठीक है, या डर्मेटोमायोसाइटिस के अंदर। और जो डेल्टा ऑप्शन है वो किस में पॉजिटिव आते हैं? हमने कल भी किया था, anti-SS डबल एस से क्या है? सिजॉर्जन सिंड्रोम। वेरी गुड। 46 कहते हैं सेल कॉन्टेनिंग डेंस ग्रेन्यूल्स है एंड हैव IgE एंटीबॉडीज ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन। तो वो कौन से सेल्स होते हैं? बेसोफिल सेल्स होते हैं। पेरिकार्डियम के अंदर क्या आते हैं? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फाइब्रस एंड विजरल लेयर। इन यूरीमिया व्हाट विल इंक्रीज? तो उसमें ब्लीडिंग काउंट इंक्रीज हो जाता है, BT इंक्रीज हो जाती है, ब्लीडिंग टाइम। चागास डिजीज एंटीबॉडीज, आई थिंक इसका हमने यही किया था कि पोलीमायोसाइटिस के अंदर होता है। हाँ जी, कार्डी के अंदर जो रो होती है, एंटी रो होती है, ठीक है। ये भी नेक्स्ट MCQs आएगा। चागास डिजीज एंड कॉन्जेनिटल मेगाकोलोन किस लेयर को इफेक्ट कर रही होती है? मस्कुलरिस एक्सटर्ना, ठीक है। इस MCQ से आप हाईलाइट कर लें, ये चीज़ें छोटी छोटी भूल जाती हैं। हाउ मच यूरिन शुड बी मेड टू मैच द ऑस्मोलैरिटी 570 व्हेन नॉर्मल इज़ 140? तो 140 को अगर आप 570 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 2.5 लीटर्स आ जाएगा, ठीक है। अगर आप उसे ml में डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ब्लड सप्लाई ऑफ द टेस्ट एरिया कौन सा होता है? MCA, ठीक है। 52 डैमेज टू द सेरिब्रोपेराइटल एरिया। अगर सेरिब्रोपेराइटल एरिया का डैमेज हो गया तो अब क्या चीज़ अफेक्ट होगी? लॉस हो जाएगा। ये हमने क्या बात की थी कि इस एरिया के साथ कौन कौन सी नर्व एसोसिएटेड होती हैं? सेरिब्रोपोंटाइन एंगल के ऊपर कौन कौन सी नर्व आती है? मैंने आपको इसका सारा सिनेरियो बताया, 7 और 8, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लॉस हो जाएगा? लॉस ऑफ टर्निंग फोक सेंसेशन। 53 विच स्पेस इज असेस्ड आफ्टर पियर्सिंग द इंटरलेमिनर लिगामेंट ड्यूरिंग द LP। तो आप LP करते हुए कौन सी लिगामेंट को, इंटरलेमिनर लिगामेंट के बाद कौन सी स्पेस को पियर्स करते हैं? एपिड्यूरल स्पेस। स्ट्रक्चर विच लाई एंटीरियर टू द ट्रेकिया इन द थोरेसिक पार्ट, तो वो कौन सा होता है? आर्च ऑफ एओर्टा। 35 MCQs में ना आपने लास्ट वाली लाइन बस हाईलाइट कर लेनी, ठीक है। सिनेरियो रीड करते हैं। ए पेशेंट विद 1 year हिस्ट्री ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ प्रेजेंटेड विद कफ ऑन एग्जामिनेशन वीज हाइपर रेजोनेंट चेस्ट एंड डिक्रीज वोकल फ्रेमिटस। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट शो डिक्रीज FEV ओवर FVC, आल्सो डिक्रीज लंग इलास्टेज, ठीक है। इसको हाईलाइट करने के लंग इलास्टेज एंजाइम डिक्रीज हो जाता है और न्यूट्रोफिल इलास्टेज जब इंक्रीज हो जाता है तो कौन सा इसमें इन्वॉल्व होता है? निकोटीन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसकी वजह से सारी पैथोलॉजी हो रही है। 56 ये ऐसा MCQs आता है 55 वाला, ठीक है। ये आपको चेंज करके नहीं देते, ये ऐसे ही आता है एग्जाम में भी। 56 कहते हैं पेशेंट प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ हेड ट्रॉमा, हिज यूरिन ऑस्मोलैरिटी वाज डिक्रीज। अच्छा, जब भी हेड ट्रॉमा की हिस्ट्री आए, ठीक है, तो आपने देखना है कोई सेंट्रल कॉज होगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। यूरिन की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज है एंड डिवेलप सिम्टम ऑफ पॉलीडिप्सी, यानी कि यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम है और यूरिन बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है, ठीक है। और हमने ADH का एनालॉग दिया जो कौन सा होता है? डेस्मोप्रेसिन हम दे रहे होते हैं। विच इंक्रीज यूरिन ऑस्मोलैरिटी, तो इसका कॉज क्या है? सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। अच्छा, SI-ADH की कॉज में भी हेड ट्रॉमा आता है, लेकिन उसमें आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? अब इसे उसमें यूरिन की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इन यूरिन की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन आता है ना, क्योंकि उसमें ADH बहुत ज़्यादा होता है SI-ADH के अंदर, ठीक है। ये आपको कॉजेज भी पता होनी चाहिए SI-ADH के, ठीक है। हाँ जी, प्लाज्मा की डिक्रीज होती है, यूरिन की इंक्रीज होती है, क्योंकि प्लाज्मा बहुत ज़्यादा उसमें वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है ADH की वजह से। 57 पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स किसके साथ रिलेटेड होते हैं? ये हम पहले इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कहते हैं जो एक्सटर्नल पोस्टीरियर आर्कुएट होते हैं ना वो किस फाइबर्स के साथ लिंक्ड होते हैं? क्यूनो सेरिबेलर, ठीक है। ये सर ने हमें ऐसे याद करवाया था कि अगर आप एक हट इमेजिन कर लें, ठीक है, एक छोटी सी घर है या कोई झोंपड़ी टाइप है, ठीक है, उसका जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है वहाँ आपने उससे क्या याद रखना है?
क्यूनो सेरिबेलर, ठीक है। और एंटीरियरली आपने ऐसे याद रखना है कि एंटीरियरली गार्ड बैठा होता है ना, वो पेंट पहन के बैठा होता है, ठीक है। तो आपने एंटीरियरली क्या याद रखना है कि पोंटो सेरिबेलर, ठीक है, पेंट वाला भाई आगे बैठा हुआ है। और इंटरनल के घर के अंदर कौन लेटा हुआ है, डोर्सल मीडियल लेमिनिस्कस, ठीक है। इस तरह करके या जो भी आपको इजी लगता है इसे याद करना, ठीक है, आपने याद कर लेना है तीनों पॉइंट्स, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में पूछा है कि पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स किसके साथ रिलेटेड होते हैं, क्यूनो सेरिबेलर ट्रैक के साथ, ठीक है। 58 MCQs कहते हैं कि विच वन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कौन सी ड्रग देगी, हम उसके लिए क्या देते हैं, अल्फा एगोनिस्ट देते हैं, वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगी और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से बीपी रेज्ड हो जाता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, जो इसमें बीटा ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रेट्स, वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है, वेजो डायलेशन करवाती है, वेजो डायलेशन करवाएगी, ठीक है। और बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगी, ये बीपी को रेस्ट करवाती हैं या डिक्रीज करवाती हैं, बीटा ब्लॉकर्स ये हार्ट रेट को भी डिक्रीज करवाएंगे और बीपी को भी डिक्रीज करवाएंगे, ठीक है। अच्छा 59 MCQ से पेशेंट एज हीमोचूरिया हीमोप्टासिस और माइक्रोस्कोपिक ग्लोमेरुलर लीनियर डेपोजिट्स किस में डेवलप होते हैं, गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। 60 MCQ से डायलेशन ऑफ विच स्ट्रक्चर कंप्रेस द इसोफेगस एंड कॉज द डिस्फेचर, ठीक है। तो वो लेफ्ट एट्रियम होता है। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारस सप्लाइड बाई, इसे कौन सी नर्व सप्लाई करी होती है, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। और इसकी किसकी ब्रांच होती है, अल्नर नर्व की एक्सिलरी या, ठीक है, रेडियल की ब्रांच होती है। स्टैब वुंड एट द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट लेटरल टू स्टर्नम। तो कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होता है, इसमें पेरिकार्डियम डैमेज हो जाता है, ठीक है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। हाई फीमा इसे क्या कहते हैं कि जो आइस का एंटीरियर चैम्बर है उसमें कोई ट्रॉमा की वजह से ब्लड अकोमुलेट हो गया, ठीक है। 64 ड्रग नॉट गिवन इन माइसिनियस ग्रेविस, कौन सी आप ड्रग नहीं देते माइसिनियस ग्रेविस में, जेंटामाइसिन, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं होता न्यूरोमस्कुलर उसके ऊपर, ठीक है, जंक्शन पे। 65 पेरियनल अब्सेस इन फीवर इन फीमेल इन्फेक्शन स्प्रेड लैटरली किसके अंदर स्प्रेड करेगी, इस्क्योरेक्टल फोसा के अंदर। मसल अटैच पोस्टीरियर टू द लैटरल आर्कुएट लिगामेंट टू द डायफ्राम, तो कौन सा मसल आपने याद रखना है, अच्छा डायाफ्राम के जो पोस्टीरियरली लैटरल आर्कुएट लिगामेंट से जो मसल अटैच होता है वो आपने याद रखना है कि क्वाड्रेटस लंबोरस, ये बैक का मसल है ना, ठीक है। तो आपने इस तरह याद रखना है कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट है ना, तो ये डायाफ्राम के साथ पोस्टीरियरली अटैच होता है लैटरल आर्कुएट लिगामेंट के थ्रू, ठीक है। 67 प्रोग्रेसिव विजन लॉस इन पेशेंट इज ड्यू टू स्लोली डेवलप थ्रोम्बाई, किस वेसल के अंदर होता है, हमने पहले भी कर लिया, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के अंदर। 68 27-year-old male having testicular tumor of non-seminomatous type lab finding, अच्छा आप देखिए इसमें कौन सी हार्मोन रेज्ड होता है, HCG रेज्ड हो जाएगा उसमें, ठीक है। 69 ये भी आपका जो है ना ऑनकोलॉजी के अंदर सारे आपके ट्यूमर्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से ट्यूमर्स के अंदर कौन कौन से मार्कर रेज्ड होते हैं, ठीक है, ये आपने ऑनकोलॉजी वाले चैप्टर से अच्छे से कर लेना है। 69 patient having fever cough with sputum infiltrate on X-ray chest gram positive catalase negative organism isolated on culture likely is, तो कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। 70 diabetic patient having chronic kidney disease with leg ulcer which antibiotic to be given dose adjustment, अगर CKD का पेशेंट है तो आपको डोज एडजस्टमेंट किसकी देने की ज़रूरत है, मीरोपेनम अगर आपने देनी है, ठीक है, तो वो आप उसके डोज एडजस्टमेंट करके देंगे, ठीक है। 71 कहते हैं ए पेशेंट हैविंग फिनाइल एलानिन इन द यूरिन ड्यू टू, ठीक है, ये किस कंडीशन के अंदर होता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर, ठीक है। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम किसके अंदर होती है, किस कैंसर के साथ एसोसिएटेड होती हैं, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स के साथ, ठीक है। 73 पेशेंट ऑन डायलिसिस डिवेलप ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ऑफ, ठीक है, तो वो कौन से हार्मोन करवाते हैं, पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज करवा देता है ये। ऑन रेक्टल एग्जामिनेशन एंटीरियर सरफेस ऑफ विच बोन पाल्पेबल, ठीक है, रेक्टल एग्जामिनेशन अगर आप करते हैं तो कौन सी बोन आपको पाल्पेट होती है, कॉक्सिस। जॉइंट सेल आर्ट्राइटिस किसके साथ एसोसिएटेड होता है, इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, ठीक है, तो कौन सी डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है, पोलीमाइल्जिया रूमेटिका, ठीक है, ये एक जॉइंट्स के डिसऑर्डर होते हैं, इसके साथ एसोसिएटेड होता है। 76 ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद जॉ क्लॉडिकेशन हेडेक ऑन एग्जामिनेशन टेम्पोरल आर्टरी फ्री में,
ये हमने कल भी किया था, ठीक है। किस में आता है? जॉइंट सेल आर्टराइटिस के अंदर। और इसमें से पल्सलेस डिजीज़ कौन सी है? पल्सलेस डिजीज़, बीटा ऑप्शन। और बच्चों में कौन सी होती है इसमें से? कावासाकी, ठीक है। और स्मोकिंग के साथ कौन सा एमसीक्यूज आता है? स्मोकिंग के साथ डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 77 कहते हैं कि जी कपल फॉस्फोलिपिड सी इज इंक्रीज बाय सम सब्सटेंस एंड दिस विल लीड टू। तो जी कपल फॉस्फोलिपिड सी को अपनी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के लिए क्या चाहिए होता है? कपलिंग के लिए कैल्शियम लेवल। न्यूरोट्रांसमीटर नाइट्रोस्टाइल पाथवे में कौन सा होता है? डोपामीन होता है। ये किस डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है? पार्किंसनिज्म के साथ। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर विच फंक्शन इज डिस्टर्ब? कौन सा फंक्शन डिस्टर्ब होता है? ठीक है, इसमें सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, ठीक है। और हाइपरट्रॉफी या कंस्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर ऑपोजिट होता है, उसमें डायस्टोलिक डिसफंक्शन आता है। सेंसरी सप्लाई ऑफ टेम्पोरल एंड प्राइटल एरिया ऑफ द स्कैल्प बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग नर्व, ठीक है। तो हम किस नर्व के थ्रू करवाते हैं? ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। पेन फ्रॉम द ईयर लोब्यूल्स आर कैरिड बाय, किसके थ्रू कैरी करवाते हैं? ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। पेशेंट हैविंग जीरोस्टोमिया लाइकली न्यूक्लियस कौन सा इन्वॉल्व होता है इसमें? सुपीरियर स्लाइवेटरी न्यूक्लियस। 83 मदर हैड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बेबी इज एट रिस्क ऑफ डिवेलपिंग। तो बच्चे के अंदर क्या डेवलप हो जाता है? प्री मेच्योरिटी। राइट साइड पैरालिसिस, ठीक है, एंड लॉस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ टंग। जब भी टंग की बात करते हैं तो कौन सा एरिया इन्वॉल्व होता है? मेडला। और इसमें आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होती है? ASA, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। और इस डिजीज को क्या कहते हैं? मीडियल मेडलरी सिंड्रोम। 85 पेशेंट केम इन एमरजेंसी विद फेलिंग हार्ट, ड्रग ऑफ चॉइस इन हार्ट फेलियर कौन सी होती है? डोपा एंड ब्यूटा। 86 पैनसिस्टोलिक मर्मर एट एओटिक एरिया विद लॉन्ग स्टैंडर्ड पल्स एंड लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग पल्स पैनसिस्टोलिक मर्मर आ रहा है आपके पास एओटिक एरिया के अंदर, ठीक है। और लेफ्ट साइडेड डेविएशन, ठीक है। तो ये बेसिकली राइट वेंट्रिकल का सारा बता रहे हैं। तो किसके अंदर होता है? ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के अंदर पैनसिस्टोलिक मर्मर आता है, ठीक है। 87 ए स्टूडेंट केम विद पेल नेजल म्यूकोजा, ठीक है, नेजल कंजेशन एंड स्नीजिंग, ही इज हैविंग दिस सिम्टम्स सिंस 3 months। तो अब इसमें अब आप क्या देंगे? नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे देंगे, ठीक है। 88 ए मैन अनेबल टू होल्ड ए मग ऑफ कॉफी एंड इमेज ड्रॉ ऑफ शोल्डर एंड हैंड मूवमेंट ऑन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो ये कौन सा एरिया होता है? प्री मोटर एरिया। ये सारी मोटर इसमें मूवमेंट्स हो रही होती हैं। Concomitant hyperplasia and hypertrophy can be seen in, तो ये किसके अंदर होता है? यूट्राइन चेंजेस इन प्रेगनेंसी के अंदर दोनों चेंजेस आ रही होती है, ठीक है। और ये नॉर्मल कंडीशन है कि हाइपरप्लेसिया भी होती है और हाइपरट्रॉफी भी होती है। मिडल ईयर की मीडियल एंड पोस्टीरियर वॉल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? फेशियल नर्व, ठीक है। हाइड्रोजन एंड पोटाशियम पंप पेराइडल सेल के अंदर कंट्रोल कौन कर रहा होता है? पोटाशियम ATPase। वाइल डूइंग स्प्लीनेक्टमी स्प्लेनिक वेसल्स नीड टू बी लाइगेटेड, दे आर प्रेजेंट इन विच लिगामेंट, किस लिगामेंट के अंदर प्रेजेंट होती है? लीनो रीनल लिगामेंट, ठीक है। ड्रग लीडिंग टू हाइपोनेट्रीमिया इन SIADH, ठीक है। तो वो कौन सी ड्रग है जो हाइपोनेट्रीमिया वैसे भी हो रहा होता है ना SIADH के, लेकिन इसकी कुछ कॉजेज़ के अंदर कुछ ड्रग्स हैं जिसकी वजह से SIADH होता है। तो वो कौन सी ड्रग है? कार्बामेजिपिन। और हमने पहले भी ये पीछे कॉज कौन सी पढ़ी है? अभी हमने SIADH की कॉज अभी लास्ट MCQs में हमने डिस्कस किया था ना, हेड ट्रॉमा, ठीक है। हेड ट्रॉमा भी आपने याद रखना है। 94 पेशेंट ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी विद इंक्रीज ALT AST, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा? उसमें हेपेटोसाइट की जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के अंदर डिफेक्ट बेसिकली कहाँ आता है? साइटोस्केलेटन के डिफॉर्मिटी के अंदर। 96 ओल्ड फीमेल फॉल इन द वॉशरूम लीड टू फ्रैक्चर एंड रिप्लेस ऑफ प्रोस्थेसिस, ऑन फॉलोइंग डे शी डेवलप डिज्निया एंड पिटिक्यूल ऑन द स्किन, कॉज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो गिरने की वजह से फ्रैक्चर आ जाता है बोन का, तो कौन सा एम्बोलिज्म होता है? फैट एम्बोलिज्म। बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहाँ पे होती है? अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज के ऊपर, ठीक है। एंगुलर सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट इन, ठीक है। तो ये इसके अंदर कौन सा एरिया प्रेजेंट होता है? प्राइमरी मोटर एरिया, ठीक है। CNS वाले MCQs आपने ऐसा याद रखने हैं। 99 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, तो वो उसमें मीजोडर्म और मेसेनकाइम आ जाएंगे।
मोस्ट इंपॉर्टेंट फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक क्या होती है? बॉडी के अंदर नेगेटिव फीडबैक क्यों होता है? ताकि वो उसकी जो वैल्यूज़ रेज हुई है वो नॉर्मल की तरफ आ जाए, ठीक है, टू ब्रिंग वैल्यू बैक टू द नॉर्मल लिमिट। 101 पेशेंट हैड हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट ब्लीडिंग एंड हिमोलिटिक एनीमिया। मोस्ट लाइकली पैथोलॉजी क्या आएगी? एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। क्यूटेनियस नर्व सप्लाई ऑफ द ईयर लोब्यूल, कौन सी नर्व सप्लाई कर रही होती है? ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। 103 ए गर्ल वाज हैविंग फीवर, टिकिकार्डिया, पिटिकल हेमरेज, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस वाज डायग्नोज। तो उसमें कौन सा टॉक्सिन होते हैं? एंडोटॉक्सिन होते हैं, ठीक है। और इसे एंडोथीलियल सेल के साथ अटैच कौन करवाते हैं? पाइलस। पाइलस इसके ऊपर प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, वो इसे एंडोथीलियल सेल से अटैचमेंट करवाते हैं। और टॉक्सिन कौन सा रिलीज करती है? एंडोटॉक्सिन। एडक्टर कैनाल कैसे बन रही होती है? इसकी जो वास्टस मीडियालस एंड एडक्टर्स ऑफ द थाइज, ठीक है, ये इसकी बाउंड्री बना रहे होते हैं, वास्टस मीडियालस, ठीक है। मैंने आपको इसकी जो बाकी सारी बाउंड्रीज है ना वो भी ग्रुप के अंदर शेयर कर दी है, वो आपने एक दफ़ा नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है, एडक्टर कैनाल की सारी बाउंड्रीज। 105 इन नटमैग लिवर डिजीज़, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है? क्रोनिक पैसिव कंजेशन हो जाती है। बेरो रिसेप्टर किस चीज़ को मेंटेन कर रहे होते हैं? मीन आर्टीरियल प्रेशर को, और ये सबसे ज़्यादा रैपिडली रिस्पॉन्स भी कर रहे होते हैं, ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन इज़ ड्यू टू, कौन सा पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है? कोलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर इसकी परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो इसकी वजह से कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है। न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स इन्वॉल्व किस पार्ट को इन्वॉल्व कर रही होती है? हाइपोथैलेमस को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूरो ट्रांसमीटर डिक्रीजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है, तो हमने पहले भी किया था, विजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड कर रहा होता है। 110 पेशेंट हैड किडनी ट्रांसप्लांटेशन डिवेलप साइनोसिस एंड ऑर्गन फेलियर विद इन द 10 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ सारी इसकी पैथोलॉजी दी हुई है, तो हमने पहले भी बात की थी कि अगर हाइपर एक्यूट रिजेक्शन हो जाता है तो उसमें इसकी कॉज क्या होती है? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, और ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर एक्यूट रिजेक्शन हो तो उसमें CD8 सेल्स होते हैं, वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आता है। क्रोनिक रिजेक्शन हो तो उसमें CD4 सेल्स आते हैं, ठीक है, और उसमें दोनों टाइप 2 और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी आ जाती है। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ के अंदर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी आती है, और इसमें पेशेंट को सिम्टम्स कैसे आते हैं? ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ के अंदर, हाँ, पेशेंट को डायरिया वगैरह डिवेलप हो रहा होता है, स्प्लिनोमेगैली हो जाती है, ठीक है, इस तरह वाले सिम्टम्स आते हैं। पेशेंट प्रेजेंटेड विद मेलर रैश, हाँ जी, रैश भी आ जाता है उसमें। ए पेशेंट प्रेजेंट विद मेलर रैश, जॉइंट पेन एंड फोटो सेंसिटिविटी, व्हाट अदर फाइंडिंग्स कैन बी देयर, ठीक है, तो इसके साथ कौन सी डिजीज़ एसोसिएटेड होते हैं? अनकालोजिंग जॉइंट्स भी हो जाते हैं, अनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। डाइगैस्ट्रिक मसल इज ए टू बेली मसल्स, इट्स लिगामेंट किसके साथ अटैच होते हैं? हियोइड बोन के साथ अटैच होते हैं। ये इसकी यहाँ इसकी बाउंड्री सारी बना रहे होते हैं, जो ट्राइंगल्स होती है ना नेक की, वो बना रहे होते हैं, उसकी बाउंड्रीज बना रहे होते हैं। वूंड कॉन्ट्रैक्शन इज मीडिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो मायोफाइब्रोब्लास्ट वूंड की कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे होते हैं। इसमें आपने फाइब्रोब्लास्ट को चूज नहीं करना, मायोफाइब्रोब्लास्ट करवा रहे होते हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज RNA वायरस, कौन सा होता है? मम्स होता है। A woman present with the problem of wrinkle of face disappears and joint movement of hand is restricted। अच्छा, आपने इसमें हाईलाइट क्या करना है कि joint movements of hand is restricted। इसका मतलब है कि जैसे इसका सिनेरियो ऐसे भी आता है कि अगर एक वर्कर था, वो उसमें ना अब वो कीबोर्ड की टाइपिंग नहीं कर सकता प्रॉपर्ली, ठीक है, मतलब उसके जो हैंड्स की मूवमेंट होती है ना जॉइंट्स की, वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, ठीक है, तो इसमें इस डिजीज़ को क्या कहते हैं? क्रस्ट सिंड्रोम, ठीक है। Patient has infarct of left ventricle which is subendocardial, also infarcted intraventricular septum, तो मोस्ट लाइकली कौन सी आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस आ रहे हैं? थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन हो गया, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स क्रोनरी आर्टरी। और ये किस एरिया को सप्लाई कर रहा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल तो उन्होंने बता दिया, इसके अलावा कौन से एरिया आते हैं इसमें? राइट एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। मसल विच ओरिजिनेट फ्रॉम लंबर रीजन एंड गोज इनटू द डीप पेल्विस, वो कौन से होते हैं? सॉस मसल होते हैं, इसलिए सॉस मसल का अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो पेन भी आपको ऐसे ही रेडिएट कर रही होती है, ठीक है, लंबर रीजन से थाइस के अंदर आ रही होती है, पेल्विस रीजन के अंदर, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट विद सवियर डायरिया वॉमिटिंग, ABG इसमें pH उसकी डिक्रीज़ है, बाइकार्बोनेट डिक्रीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑलमोस्ट लोअर लिमिट पे है, ठीक है।
तो ये टिपिकल स्नैरियो किस चीज़ का, डायरिया के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, ठीक है। पेशेंट हैविंग ट्रैवलर्स डायरिया नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटी डायरियल ड्रग्स, तो अब आप उसे कौन सी ड्रग देते हैं, नॉरफ्लॉक्सासिन देंगे। यंग गर्ल इज एक्सरसाइजिंग, व्हाट पैरामीटर्स इज डिक्रीज इन हर स्केलेटन मसल्स, ठीक है। अब वो एक्सरसाइज करिए तो स्केलेटन मसल में क्या चीज़ डिक्रीज हो जाती है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस या आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। A patient present to you with both lower limb weakness and gait problem has peripheral tingling sensation. He is more commonly have. तो उसमें क्या डेवलप होगी, ये श्वानोमा का साइन है, ठीक है। ये एक नर्व शीट का ट्यूमर होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से सारी नर्व वाली पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे होते हैं जिसमें नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। चाइल्ड प्रेजेंट विद स्केफोसेफली विद सूचर क्लोज प्रीमेच्योरली, ठीक है। तो बच्चों के अंदर प्रीमेच्योरली अगर सूचर क्लोज हो जाए तो वो कौन सा होता है, सैजिटल सूचर। 123 person who write with his left hand, he suffered an RTA head injury, okay, now presented to you problem he can't differentiate from left from right and difficulty in writing comprehension word retrieval. He has injury of, injury किस part of the brain की होगी, अच्छा अब देखिए, अब वो लेफ्ट हैंड साइड का था ना, ठीक है। अब वो प्रॉपरली लिख नहीं पा रहा, ठीक है, राइटिंग वाले इन्वॉल्व हो गया और कॉम्प्रिहेंशन इन्वॉल्व हो गया। तो बेसिकली कौन से पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व है, राइट साइड, ऑपोजिट कॉन्ट्रालैटरल साइड इन्वॉल्व होती है ना, तो राइट पेराइटल साइड इन्वॉल्व होगी, इसका मतलब है, ठीक है। राइट पेराइटल साइड की जो आर्टरी होती है ना वो डैमेज हो गई है आरटीए के अंदर, ठीक है, उसमें इस्कीमिया हो गया। ए फ्रंट टेस्ट पाथवे फ्रॉम टंग रिले कहाँ पे करते हैं, उसका रिले सेंटर कौन सा होता है, सेंसेशन ट्रेवल्स थ्रू द पेरिफेरल एक्सोन टू द ट्रैक्टर सॉलिटैरिस, ठीक है। 125 60 years old man presented with 8-month history of progressive generalized lymphadenopathy. His HB is 9.8, ठीक है, स्लाइटली डिक्रीज्ड है। लेकिन आपने इसमें क्या चीज़ याद रखनी है, एज। सबसे पहले आपने जो लिम्फोमा होते हैं ना वो आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करने हैं, एज के थ्रू। एज वाला फैक्टर आएगा, ठीक है। TLC काउंट तो थोड़ा रेज्ड हुआ है, प्लेटलेट डिक्रीज हो रहे हैं और मैच्योर लिम्फोसाइट, एज को हाईलाइट कर लें और मैच्योर लिम्फोसाइट्स किसके अंदर आते हैं, CLL के अंदर आते हैं। 126 women had polyp in the cervix. Pap smear show thick endothelium with pleomorphic cell, hyperchromatic nuclei show काइलोसाइट्स द चेंजेस। जब भी एपिथेलियम के अंदर इस तरह के चेंजेस आते हैं उसे क्या कहते हैं, तो डिस्प्लेजिया डेवलप हो जाता है। 127 एंड ओल्ड मैन कोलैप्स एंड हर ECG शो एट्रियल रेट 75। जब भी एट्रिया सेपरेट स्टार्ट हो जाए वेंट्रिकल का हार्ट, मतलब उसने अपना साइकिल सेपरेट कर लिया, ठीक है, तो ये कौन सा होता है, एडम स्ट्रोक, ठीक है। इसके अंदर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। ये आप अगर आपने इसकी डिटेल देखनी है ना तो जो है ना फर्स्ट एड के अंदर इसके सारे छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। हाईएस्ट चांस ऑफ न्यूमोथोरेक्स अकर, सबसे ज़्यादा चांसेस न्यूमोथोरेक्स के डेवलप कब होते हैं, अगर आप CVP लाइन पास कर रहे हैं तो कौन सी वेन के अंदर डैमेज आ सकता है, सबक्लेवियन वेन। यंग मैन प्रेजेंटेड टू यू विद अ प्रॉब्लम ऑफ नो इरेक्शन एंड गायनोकोमेसिया ड्यू टू इंक्रीज ऑफ, कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ GnRH हार्मोन को इनहिबिट कौन सा कर रहा होता है, प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन की वजह से एक तो गायनोकोमेसिया डेवलप हो जाएगी क्योंकि प्रोलैक्टिन रेज्ड है, ठीक है, और इरेक्शन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो GnRH हार्मोन को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। 130 विच ड्रग सेफ इन लिवर डिकम्पनसेशन डिजीज, तो आप कौन सी देते हैं, ऑक्साजिपाम, लोराजिपाम एंड टेमिजापाम, ठीक है, ये सेफ होते हैं लिवर डिजीज के अंदर। नोकार्डिया लंग अपसेस का ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल। ओ नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज विद AB पॉजिटिव, व्हाट इज द सेकेंडरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। अब आप उसे क्या देंगे, इसमें क्या डेवलप हो गया, सॉरी, हीमोग्लोबिन यूरिया डेवलप हो जाता है, ठीक है, सेकेंडरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की वजह से, ठीक है। T lymphocyte activate MHC class 2 किसके थ्रू, gamma interferons के थ्रू। A patient came with RTA has spinal cord lesion completely cut, ठीक है। अब कहते हैं कि सारे, एक मिनट, पेशेंट, अच्छा, अब कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड सारा डैमेज हो गया है ना, अब उसे एक सिम्टम आएगा, ठीक है। जो स्पेस्टिक पैरालिसिस है ना, ये मसल टोन रेज्ड होने की वजह से होता है बेसिकली, ठीक है, स्केलेटन मसल्स की।
तो ये अगर स्पाइनल कॉर्ड कट भी हो जाए, कंप्लीट ट्रांसेक्शन भी हो जाए, लेकिन फिर भी स्पास्टिक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर फिर भी आपको नज़र आएगा सिम्टम्स के अंदर, ठीक है, बाकी कोई फाइंडिंग्स नहीं आएगी। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल सॉल्ट्स इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ विच पार्ट ऑफ द गट, ठीक है, अगर हम आइलियम रिमूव कर दें तो बाइल की एब्जॉर्प्शन बाइल सॉल्ट्स की डिक्रीज हो जाएगी। प्राइमरी डिहाइड्रेशन ही हमने कल भी डिस्कस किया था, ठीक है, प्राइमरी डिहाइड्रेशन हो जाए, स्वेटिंग हो जाए, डायरिया हो जाए, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वाटर लॉस हो जाता है और उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। 137 इफ द सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज कट, ठीक है, तो उसकी जो ब्लड सप्लाई नॉर्मली उसे बैक फ्लो सीमन की बैक फ्लो ऑफ द ब्लैडर कौन सी चीज़ इसे प्रिवेंट करी थी, सिंपैथेटिक सप्लाई। अगर सिंपैथेटिक सप्लाई कट हो जाएगी तो जो सीमन है उसका रेट्रोग्रेड इजैकुलेट हो जाएगा दोबारा ब्लैडर के अंदर, ठीक है। फीचर विच डिफ्रेंशिएट डिस्प्लेसिया फ्रॉम द न्यूप्लेसिया, इनमें से कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, इन्वेजन टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, अगर वो इन्वेट कर जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन को इसका मतलब है मैलिग्नेंसी प्रेजेंट है। हाइपरकैलेमिया अकर इन एक्यूट रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज में, ये मैंने आपको टेबल भी शेयर किया था कि हाइपरकैलेमिया की कॉजेज़ क्या होती हैं, हाइपोकैलेमिया की कॉजेज़ क्या होती हैं फर्स्ट एड का, इसमें से एमसीक्यूज आता है, ठीक है, इस टेबल में से अक्सर। मिडल जो फर्स्ट एड के टेबल्स हैं ना और जो रफ़ी के, वो आप बहुत अच्छे से करते जाएं बार बार, ठीक है, फिर वो आपको एंड तक खुद ही याद हो जाएंगे। मिडल मेनिंजियल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच होती है। विच हार्मोन ऑलवेज एक्ट थ्रू साइक्लिक एएमपी मैसेंजर सिस्टम, तो वो टीएसएच आ जाएगा। फ्लैट जैम्प हमने इस तरह याद किया था ना इसे। फीमेल हैविंग हाई प्रोलैक्टिन लेवल, कैबरगोलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, D2 का एगोनिस्ट होता है। ये एक्स्ट्रा सिस्टोलिक बीट कब प्रोड्यूस होती है, जब आपका पल्स प्रेशर जो है ये डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। एक मिनट, पल्स प्रेशर डिक्रीज होगा अगर स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो एक्स्ट्रा सिस्टोल की बात की है, लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल बीट आफ्टर एक्स्ट्रा सिस्टोल तो उसमें पल्स प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी दोबारा इंक्रीज हो जाता है और मीन आर्टीरियल प्रेशर भी रेज्ड हो जाता है। एनसिड सेफ लैक्टेटिंग मदर में कौन सा होता है, आइब्रूफिन दे सकते हैं। लिवेटरी एनाइज इनर्वेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, पुडेंडल नर्व इसे सप्लाई कर रही होती है। ग्रेसिलस मसल की कौन सी नर्व सप्लाई होती है, ऑब्जुरेटर नर्व। इन कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपॉइटिन पोरफायरिया, ठीक है, यूरिन के अंदर कौन सा आता है, यूरोपोरफायरिन 1, ठीक है। 148 पेशेंट प्रेजेंटेड विद यूरेटेरिक स्टोन कंप्लेन ऑफ पेन इन थाई, तो कौन सी नर्व जो है ये पेन कॉज करवा रही है, जेनिटोफिमोरल नर्व, ठीक है। ठीक है, नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि अगर ग्रायोन और लाइन की पेन होगी तो उसमें नर्व कौन से इन्वॉल्व होती है, हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियोइंग्वाइनल, ठीक है। और अगर रेफर्ड पेन आ रही है थाइज एंड टेस्टिकल के अंदर तो उसमें कौन सी नर्व होती है, जेनिटोफेमोरल नर्व। स्ट्राइएटेड मसल एंड कंटिन्यूस रिदमिक कंट्रैक्शंस, विच मसल इज दिस, कौन सा मसल होता है, कार्डिक मसल। मैकेनिज्म ऑफ कैंसर फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें बेसिकली इनिशिएटर्स होते हैं फॉलोड बाय प्रोमोटर्स जो कार्सिनोमा कॉज करवा देते हैं। 151 which one of the following is released at the synapse between incoming pain fibers and pain inhibitory fibers in the spinal cord, तो पेन की इनहिबिटरी फाइबर्स कौन से होते हैं, इनकेफ्लिन रिलीज होता है, ठीक है। 152 पेशेंट इज हैविंग एटेक्सिया, विच पार्ट ऑफ सेरिबेलम इज अफेक्टेड, तो उसमें वर्मिस अफेक्ट हो जाते हैं। बेसिकली जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं या अल्कोहलिक एब्यूजिव पेशेंट्स होते हैं ना, तो उसमें गेट एटेक्सिया हो जाता है और एंटीरियर वर्मिस इन्वॉल्व होता है, ठीक है, अल्कोहलिक पेशेंट में होता है ये। 153 विच एंटीएमेटिक इन पार्किंसन पेशेंट पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी शुड बी यूज, ठीक है, पार्किंसनिज्म का पेशेंट है और एंटीएमेटिक हमने उसे देनी है पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी, तो वो कौन सी होती है, डाइफेनहाइड्रामीन। एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट इफ प्रेजेंट, तो वो ड्रेन कहाँ पे करी होती है, हेड के अपर हेड के अंदर। ब्रोकास एरिया की लोकेशन किस लोब के अंदर होती है, फ्रंटल लोब के अंदर। आफ्टर पासिंग वेज शेप कैथेटर प्रेशर इंक्रीज 5 mmHg इंक्रीज होता है, तो वो किस वजह से इंक्रीज हो जाता है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड की वजह से। क्लोरोप्रोमाजिन मोस्ट कॉमन टॉक्सिक इफेक्ट इसका क्या आता है, डिस्टोनिया प्रोड्यूस करवा देते हैं ये। Girls come with increased fatigability with increased pigmentation on all the body, splenomegaly HB 8.1 है, MCV और MCH डिक्रीज है, फेरेटिन बहुत ज़्यादा रेज्ड है, ठीक है। जब इस तरह के सिग्मा आए तो ये कौन सा इसका डायग्नोसिस क्या होगा, फेरेटिन रेज्ड है।
और पिगमेंटेशन हुई हुई है, स्प्लीनोमेगाली हुई हुई है। स्प्लीनोमेगाली से आपको समझ आ जाएगा, कोई ऐसा अनीमिया है स्प्लीनोमेगाली हुई हुई है। माइक्रोसिटिक अनीमिया ना कोई, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कौन सा आ जाएगा, थैलेसीमिया मेजर के अंदर जो है फेरेटिन का लेवल बहुत रेज्ड हो जाता है, ठीक है। फेरेटिन का लेवल बहुत ज़्यादा रेज्ड हो जाता है, थैलेसीमिया मेजर आ जाएगा। और इसमें हम ड्रग कौन सी देंगे, डीफिरोक्सामिन देंगे, ठीक है। एफेजिया इज ड्यू टू लीजन इन किसके अंदर आता है, ब्रोकाज एरिया के अंदर। ब्रोकाज एरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्रंटल लोब में, ठीक है। आपको एग्जाम के अंदर प्रॉपर्ली बताया होगा कि एफेजिया की कौन सी टाइप, या कोई इस तरह का हिंट दिया होगा, ठीक है। इन मॉडरेट एक्सरसाइज क्या होता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाती है। फीमेल पेशेंट केम इन कार्डिक ओपीडी विद कार्डिक डिफेक्ट, साइकेट्रिक बिहेवियर एंड क्लेफ्ट पैलेट लाइकली ड्यू टू, किसमें होता है, डाइजॉर्ट सिंड्रोम के अंदर। इसका निमोनिक क्या था, कैच-22। हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्टिविटी रेट इंडिकेट कैसे करते हैं, उसमें कोर एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है, HBeAg पॉजिटिव आता है, ठीक है। 163 ए यंग बॉय केम विद कंप्लेन ऑफ फेशियल एसिमेट्री, ये कौन सा आ गई है, फेशियल पाल्सी का सारा सिनेरियो है ना, बेल्स पाल्सी। ड्रॉलिंग ऑफ स्लाइवा फ्रॉम माउथ, इनएबिलिटी टू क्लोज हिज आई, सेवंथ नर्व इन्वॉल्व है। हिस्ट्री प्रिवेल्स क्रॉनिक नेजोफ्रेंजियल साइनोसाइटिस, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज, तो इसमें बैक्टीरिया कौन सा होता है, क्राइनी बैक्टीरियम डिफ्थेरिया, ठीक है, जिसने सेवंथ नर्व को इन्वॉल्व करके फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी कॉज करवा रही है। चाइल्ड इज हैविंग एस्पर्जिलस एंड स्टेफ ऑरियस रिकरेंट इन्फेक्शन, ये एस्पर्जिलस या रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन क्यों होते हैं, NADPH ऑक्सीडेज अगर एंजाइम डेफिशिएंट होता है ना कुछ बच्चों के अंदर, इम्यूनो डेफिशिएंट डिसऑर्डर्स हैं ये। इम्यूनिटी के अंदर ना आपने जो फर्स्ट एड से आपने पूरी नहीं करनी, पूरी करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने जो इंपॉर्टेंट टेबल्स है ना वो आपने लाजमी करना है। उसमें से एक टेबल ये वाला भी है, ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी वाला टेबल है, जिसमें बीटा सेल्स की डेफिशिएंसी है, T सेल्स की, और सारा कुछ लिखा हुआ है ना, टेबल्स बने हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट एड के अपने टेबल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होती है बच्चों में। अबाउट साइनस अरिथमिया, ट्रू स्टेटमेंट क्या होती है कि हार्ट रेट इंक्रीज होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, और ठीक है, और एक्सपायरेशन के दौरान हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है थोड़ा सा स्लाइटली। इंस्पायरेटरी रैम्प सिग्नल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डोर्सल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन, देयर रेट इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू इम्पल्स फ्रॉम, ठीक है। तो कैसे होता है, निमोटैक्टिक सेंट्रल इम्पोन्स जो है वो रेट को इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है, रेट को इंक्रीज कर रहे होते हैं। DNA रेप्लिकेशन अकर इन विच स्टेज, किस में होते हैं, इंटरफेस के अंदर होते हैं, ठीक है। पेशेंट हैज़ वॉलेंट्री आई मूवमेंट लॉस विदाउट विजुअल कमांड, प्रॉब्लम कॉज किसके अंदर आती है, फ्रंटल आई कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है। 169 a lady was given some injection on the 14th day of menstrual cycle because of which her menstruation was absent, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन जो 14 डे पे आपने इंजेक्शन दिया वो किस चीज़ को इनिबिट कर रहा है, एस्ट्रोजन को। रिगार्डिंग लिम्फोसाइट्स की ट्रू स्टेटमेंट क्या है, ये कैंसर फाइटिंग सेल्स भी होते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ प्रोलैक्टिन कैसे करते हैं, ये इनिबिट कर देते हैं GnRH को। इन वॉमिटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स, वॉमिटिंग के अंदर क्या होता है, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर जब आपका रिलैक्स होता है तो तब भी सारी जो गैस्ट्रिक कंटेंट होती है वो इसोफेगस के थ्रू मतलब वॉमिट होके बाहर आ जाती हैं, ठीक है। 173 ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ एल्वुलर डक्ट कौन से होते हैं, कहाँ किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एल्वुलाई के अंदर। ए पेशेंट हैविंग HCT की वैल्यू 30% है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ साइटोस्केलेटन एबनॉर्मेलिटी की वजह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एक्टिवली सिक्रीट कौन सी हो जाती है किडनी से, स्ट्रेप्टोमाइसिन। पल्मोनरी आर्टरी डेवलप किस आर्च से होती है, 6 आर्च से। इंग्वानल लिम्फ एडिनाइटिस अफेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये किसको अफेक्ट कर रही होती है, लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस को। प्रोस्टेट मेनली ड्रेन किसके अंदर करा होता है, इंटरनल आइलिक एंड सैक्रल लिम्फ नोड्स के अंदर। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, कॉमन हेपेटिक आर्टरी की। पार्ट ऑफ CVD किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है, सुप्राड्यूडिनल एंड इंट्राड्यूडिनल एंड रेट्रोड्यूडिनल, ठीक है। ये इसके सारे पार्ट होते हैं कि पहले वो ड्यूडिनम के ऊपर से गुजरती है, देन उसके बिहाइंड और इस तरह करके, ठीक है, फिर वो पैंक्रियाज के डक्ट के अंदर एंटर हो जाती है, सॉरी हेड के अंदर, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द हेड के अंदर। रिगार्डिंग पल्मोनरी वेरेक्स 2 क्या होता है कि ये ड्रेन किसके अंदर होती है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर।
पेशेंट ऑफ टीबी ऑन एटीटी एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग फॉर 2 months। टीबी एंटीबॉडीज़ की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं कि वो सेल के साथ बाउंड कर जाती हैं। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ आइलिक क्रस्ट का लेवल कौन सा होता है? L4। बेसल गैंग्लिया, अच्छा ये वाला जो एमसीक्यूज है आपने अच्छे से याद रखने हैं कि बेसल गैंग्लिया के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? स्ट्राइएटम प्लस ग्लोबस पैलिडस प्लस सबथैलेमस और सिस्टेंशिया नाइग्रा, ये सारी चीज़ें बेसल गैंग्लिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसकी फर्स्ट एड के अंदर एक डायग्राम भी बनी हुई है, ठीक है। गैमा रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन यूज़ किस कौन से इंस्ट्रूमेंट के लिए गैमा रेडिएशन हम यूज़ करते हैं? सिरिंजेस के लिए, नीडल्स या सिरिंजेस के लिए। HIV पेशेंट के लिए एंटीसेप्टिक टू यूज़ आफ्टर सर्जरी टू क्लीन द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के लिए आपने क्या यूज़ करना है? 2% ग्लूटाल्डिहाइड और फ्लोर से क्या याद रखना है? 1% हाइपोक्लोराइड, ठीक है। हाँ जी, ग्लाइको पाइरोलेट इज़ प्रेफर्ड ओवर एट्रोपिन, क्यों? क्योंकि ये क्वाटरनी अमाइन होता है। बोथ रिकरेंट लारेंजियल नर्व सर्व्ड विच मसल विल बी स्पेयर्ड, कौन से मसल को अफेक्ट ये नहीं करती? क्रिकोथायराइड, क्योंकि उसकी नर्व सप्लाई डिफरेंट होती है। कैटिकोलामाइन सिंथेसिस फ्रॉम किस अमाइनो एसिड से बन रहे होते हैं? टायरोसिन से। ए पेशेंट प्रेजेंट शॉर्ट लिम नॉर्मल ट्रंक एंड लंबर लॉर्डोसिस, द मोड ऑफ इनहेरिटेंस कौन सा होता है? इसका डायग्नोसिस बताएं पहले। डायग्नोसिस कौन सा है, क्या है इसका? एक कॉन्ड्रोप्लेजिया, तो इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होती है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एट्रियल मैक्सोमा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लेफ्ट एट्रियम में। इनहिबिन इज प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल टू इनहिबिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, FSH को इनहिबिट करती हैं ये इनहिबिन, ठीक है। श्वार्ट्जमैन रिएक्शन किसे कहते हैं? इसमें एंडोटॉक्सिन मीडिएटेड रिएक्शन होता है। एस इनहिबिटर गिवन टू पेशेंट व्हाट विल हैपन, अब क्या हो जाएगा? एंजियोटेंसिन 2 को ये इनहिबिट कर रहे होते हैं, ठीक है, डिक्रीज कर देते हैं। व्हाट कनेक्ट्स द वाइट ब्लड सेल्स टू एंडोथीलियम, के साथ किस चीज़ को कनेक्ट करते हैं? आईकैम के थ्रू। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिपेंड किस चीज़ पे करता है? वीनस रिटर्न से डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट विद ज्वाइंट, अच्छा इसमें आपने क्या हाईलाइट कर लेना है लास्ट पे? एंटी RNP एंटीबॉडीज़, ठीक है। एंटी RNP एंटीबॉडीज़ किसके अंदर पॉजिटिव होती है? मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के अंदर। 198, a young boy having night blindness, his elder brother also having the same problem during night. Which investigation will you perform further to diagnose the cause of night blindness? आप क्या करवाते हैं? इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम करवाएंगे, ठीक है। 199, a patient was presented to emergency, हार्ट रेट उसका 25 है, बहुत कम है। QTS इज़ वाइड, ठीक है। एंड बेजेड, व्हाट इज़ द पेस मेकर, तो जब भी हार्ट रेट 20 से 40 के दरमियान है, इसका मतलब है कि कौन से फाइबर्स हैं? परकंजरी फाइबर्स है। AV नोड अगर 40 to 60, अगर हार्ट रेट 40 to 60 के दरमियान है, इसका मतलब है AV नोड है। और अगर 60 to 80 के दरमियान है हार्ट रेट, इसका मतलब है जो पेस मेकर है वो SA नोड है। 200, a young boy presented with fever, rash on the elbow, generalized cervical lymphadenopathy with TLC count 7,230. He also take penicillin for his fever. What is the suitable diagnosis? तो ये किस चीज़ का डायग्नोसिस है? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का, ठीक है। कि रैश भी आ रहा है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, ठीक है। इस तरह की हिस्ट्री इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर ये लिम्फेडिनोपैथी कॉज करवा रही होती है, साथ फीवर और रैश भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा इसके नेक्स्ट आई थिंक 40 MCQs हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने खुद कर लेने हैं, ठीक है। उसमें से कोई MCQ समझ ना आया तो आप लोगों ने बता देना है, वो फिर मैं आपको कल करवा दूँगी। और यहाँ तक 200 MCQs में कोई इशू तो नहीं है? क्लियर है? चले रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। 2 मिनट में बस रिवाइज करते हैं, फिर एंड कर देंगे क्लास। Concomitant hyperplasia and hypertrophy can be seen in breast development in puberty, uterine changes in pregnancy, endometrial hyperplasia, exercising muscle. ठीक है। Drug leading to hyponatremia in SIADH is sodium valproate, carbamazepine, phenytoin, ethosuximide, topiramate. ठीक है। Perianal abscess in female infection spread laterally to ischiorectal fossa, superficial perineal pouch, ठीक है। Class of tumor cell which act against host cells is CD4, CD8, MHC1, MHC2, ठीक है। Mullerian inhibiting factor secreted from Sertoli cells, ovaries, granulosa cell and theca cells. Pure phrenic innervation to which part of the pleura?
डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा, मीडियास्टल प्लूरा, कोस्टल प्लूरा, होल प्लूरा, मीडियास्टल. Patient has gradual vision loss and laser photocoagulation was done. Which structure is involved? Lens, retina, cornea, anterior chamber. Retina. Sudden rises in pulse pressure due to, किसके साथ लिंक होता है पल्स प्रेशर? स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. A man unable to hold a mug of coffee and image draw of shoulder and hand movement on which part of the brain? Premotor, primary motor, somatosensory, cerebellum. मिडल ईयर की मीडियल एंड पोस्टीरियर वॉल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? विगस नर्व, फेशियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, एब्ड्यूसर नर्व. Digastric muscle is a two belly muscle and its ligament attached to hyoid bone, mastoid bone, angle of mandible, sternal angle. नोकार्डिया लंग अब्सेस की ट्रीटमेंट में क्या आ जाता है? ट्राइमेथोप्रिम, सल्फामेथोक्साजोल, सेफ्ट्राइएक्सोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन. Which drug is safe in liver decompensation disease? Diazepam, oxazepam, fentanyl, phenobarbital, lidocaine. Accessory pancreatic duct if present किस चीज़ को ड्रेन करती है? लोअर हेड ऑफ पेंक्रियाज, अपर हेड ऑफ पेंक्रियाज, टेल, अनसिनेट पार्ट, इंफीरियर. ब्रोका's area location in which lobe? Temporal lobe, superior temporal lobe, frontal lobe, parietal lobe. Pulmonary artery developed from which arch? Third arch, fourth arch, sixth arch, first arch. Six. Ground substance of alveolar duct is present in basement membrane, collagen, elastic fiber, alveoli. एल्वुलाई. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट 50 MCQs ना आप अभी चाहे 20 मिनट्स लगा के आप लोगों ने रीड कर लें, या जब भी आप अपने डे का कोई फ्री पार्ट टाइम हुआ. ठीक है. और इंशाल्लाह कल मैं आपसे ये सारा पेपर हम पहले रिवाइज करेंगे, फिर हम पेपर 2 पे चलेंगे इसके. ठीक है. कोई भी इशू आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं. ठीक है. चलें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. क्लास एंड करते हैं.